Hello students, welcome to Political Arena and the second chapter for class 9th is Constitutional Design. Let's crack the code of a name. Constitutional Design, definition of Constitution, a rule book by which a country is governed. सबसे आसान definition है. तो फिर what is design? ये वाला design, ये embroidery वाला. No, I'm just cracking a bad joke. Constitutional design is making of your constitution. And here, when we are going to learn about how our constitution was made, before that we are going to talk about one country which is in Africa to the southernmost part, and the name is South Africa. So we are going to travel to South Africa to get to know how they made their constitution and whose role is important and why and how much. So first question is, what is your constitution? Why do you need constitution? And how the constitution is drawn upon. So the gentleman on my left is Nelson Mandela. ये गांधीयन है, follower of गांधी जी. He spent 28 years in prison in Robben Island. ये जगह का नाम है जहाँ पे prison है, जहाँ पे 28 साल उन्होंने जेल में बिताए. Reason? Because he fought against this apartheid system. Now ये apartheid system क्या होता है? It's a regime, एक racial discrimination है. So 28 years you spend your life in a prison for fighting for your country's rights of blacks, जो काले लोग हैं. See, South Africa was under the control of white government, British government, and they used to follow a system called apartheid. अब ये apartheid है क्या? Racial discrimination, एक word याद रखिए. And they used to follow segregation policy. Segregation जैसे कि इंग्लिश वर्ड से है ना, separate, तो सेपरेट करना. अब क्या क्या चीजें सेपरेट होती थी? सी, दे वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस. सो व्हाइट्स एंड ब्लैक, और सुपीरियर रेस कौन सा है? बट ऑब्वियसली व्हाइट होगा. नाउ ईच ग्रुप हैड टू लिव इन एन सेपरेट एरिया. मतलब व्हाइट्स अगर वहां रह रहे हैं तो ब्लैक्स दूर रहेंगे. एंड रिमेंबर, ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू गो टू द व्हाइट एरिया टिल दे आर कॉल्ड. इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे. Everything, university, school, theater, shopping center, beaches, park, benches, everything was separate for blacks. आपको अच्छा लगेगा अगर आप काले हैं और आपके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है? इस भेदभाव को बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन. तो क्या आपको राइट टू वोट होगा इस कंट्री में? बिल्कुल नहीं. सो देयर वाज नो राइट टू वोट फॉर द ब्लैक्स. और अगर आपको राइट टू वोट नहीं है तो गवर्नमेंट में आपकी कोई सेइंग है? बिल्कुल नहीं है. तो यू हैव नेग्लिजिबल रोल इन योर गवर्नेंस. मतलब आप अपनी खुद कंट्री में रह रहे हो बट आप उस कंट्री के हिस्सा नहीं माने जाते हो. सो ऑल दीज ब्लैक पीपल एंड इंडियंस एंड द अदर कलर एशियंस केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. व्हेन आई से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंडर बाकी के सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दे केम and then they started fighting against this racist regime, and Nelson Mandela was one of the prominent leader who actually stood against these Britishers. So now the protest and the struggle against the apartheid increased. The black could no longer be kept under the rule of government through repression. अब धीरे धीरे blacks are coming and joining hands against the government. They are not liking any of the policy which is been coming by the government to control these people. और all the discriminatory laws were repealed. जितने भी लॉ थे उन सब पे क्वेश्चन मार्क किया गया कि why is that in my own country I have been treated as an alien. ये क्वेश्चन रहा सारे ब्लैक्स का to the whites. सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और जो बैन रखे थे पॉलिटिकल पार्टीज पे व्हाइट्स ने, वो अब धीरे धीरे लिफ्ट कर दिए. दिस इज अ टाइम ऑफ अ चेंज, क्योंकि ये 60s से लड़ाई चल रही है. इट हैज़ कम अप टू 80s एंड नाउ 90s. तो एक बड़ा चेंज आप सिस्टम में देखेंगे. नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज आफ्टर 28 years एंड 26 April 1994 अ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज फॉर्म्ड. तब जाके आपको ये कंट्री मिली. कितनी नई है. 1994 इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं लगता है कंपेयर टू इंडिया 1947. But then the whole credit goes to this gentleman and all the other political parties and all the blacks who fought against this racist regime
बट येस दे गॉट देयर कंट्री इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वंस यू आर इंडिपेंडेंट, तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करोगे, जो रिपब्लिक बनने की जो प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, वो कैसे की है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये। नाउ द पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑपरेशन एंड द ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर ऑन अ टेबल एंड डिसाइडेड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड लाइक टू हैव। All the black leaders requested and appealed to their fellow black people that forget it whatever had happened in the past. Now please come out of it and have a constitution and have a country where we all live together and progress together. अगर आप अपने हिस्ट्री से बाहर नहीं आओगे तो आप हमेशा से एक पिछड़े हुए कंट्री रह जाओगे। And that's the reason why the constitution in South Africa gave the most extensive rights अवेलेबल टू दीज पीपल। दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव वेरियस रीजंस व्हाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे टेक्स्ट बुक ने हमारे लिए थोड़ा सा लाइफ इजी कर दिया और उन्होंने 4 पॉइंट्स बोले हैं। लेट्स डिस्कस दोज 4 पॉइंट्स। सी, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इट इज नथिंग अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप among the people living in the territory, we call them citizen, and the government. तो relationship between a government and people is called constitution। एक छोटा सा और एक definition है जो आप पहले से पढ़ते हैं और उसमें एक जोड़ दिया गया है। अब अगर आपको ये रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन कैसी होनी चाहिए, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो पहला चीज, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, भरोसा। देखिए, गो बैक टू साउथ अफ्रीका। मैं काला हूं, हाँ मतलब लिटरली मैं काला हूं, तो मैं काला हूं, आप गोरे हो, और आपने कह दिया चलिए आप आजाद हो अभी से 1994 से और हम भी आपके साथ रहेंगे, पर आप मुझे मारना नहीं। और मैं कहता हूं हाँ ठीक है, मैं भी आपको नहीं मारूंगा। पर क्या भरोसा, मैंने तो सिर्फ बोला था ना, कुछ लिखित था कि नहीं मारूंगा। हो सकता है ना कि जैसे ही आप मुझे आजादी दे दो मैं आपको वही चीजें करने लगूं जो आप मेरे साथ कर रहे थे, चांसेस है। तो हम दोनों के बीच में किसी भी काम के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक भरोसा चाहिए। सो दैट इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट कि बॉस वी बोथ आर गोइंग टू लिव टुगेदर पीसफुली एंड वी आर गोइंग टू फॉरगेट व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, यू नीड टू, दिस कॉन्स्टिट्यूशन develops a degree of trust and coordination which is necessary for different kind of people to live together. Now let's see the second one. It specify how the government will be constituted. इंडिया में है ना बेटा, हर जगह लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये कैसे चुने जाएंगे, कौन क्या काम करेगा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन। और ये सब कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हु इज गोइंग टू टेक व्हाट डिसीजन। और साथ ही साथ लिमिटेशन ऑफ द पावर इज ऑल्सो मेंशन्ड। ये ध्यान रखना आप, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं होता है। और वही हमारा थर्ड पॉइंट है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है बट लिमिटेड पावर है। सोचिए ना, इफ आई गिव यू एन अनलिमिटेड पावर तो आप कैसे रहोगे? क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? नो, you can be a dictator or can be an absolute monarch and those times have passed away. अब सिर्फ लोगों का रूल, that is why democracy. Now the fourth one, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. एक चीज याद रखिए बेटा, जितनी अच्छा आपको मैं सोसाइटी क्रिएट करके दूंगा आप उसको उतना अच्छा रखोगे, आप उसे और बेटर करने की कोशिश करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हैव यू बीन टू मॉल्स? आई एम श्योर यू हैव। आप कभी भी कोई कचरा कूड़ा उठा के यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हो मॉल्स में, क्यों? आसान सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं फेंकते हो? क्योंकि आप ऐसा कुछ वहाँ देखते नहीं हो। आई गिव यू अ ब्यूटिफुल एनवायरमेंट एंड यू मेक इट लिटिल मोर ब्यूटिफुल बाय वेयरिंग गुड क्लोथ्स एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाई इज दैट इज नॉट डन ऑन एन फुटपाथ और ऑन एन रोड? क्वेश्चन है ना। तो एस्पायर करता है सिटीजन को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और बेटर कंट्री बनाने के लिए। अब आते हैं सबसे अच्छी टॉपिक पे, सबसे मजेदार टॉपिक पर, आसान है।
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने कई बार पढ़ा है, बट वी विल हैव अ डिफरेंट एंगल दिस टाइम। तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एट ऑल अ इजी टास्क। अब जब मैंने कह ही दिया कि वो इजी नहीं था, तो फिर डिफिकल्टी क्या थी? डिफिकल्टी वॉज इन दिस सर्कमस्टांसेस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब क्या था? वी गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन a Hindu dominated India and the other one Muslim dominated Pakistan। तो क्या बुरा हुआ? बुरा हुआ राइट्स। 10 लाख लोग बॉर्डर के दोनों तरफ से मारे गए। And at that time, I'm drafting a constitution and I have to make sure that every Muslim or an Hindu who is moving from this part to that part is having that trust that if I stay with this country, I will have my progress और मेरा डेवलपमेंट होगा और हम यूनाइटेड रहेंगे। ये डिफिकल्टी थी। ये सबसे पहली डिफिकल्टी है कि पार्टीशन जो रिलीजियस बेसिस पे हुआ, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े। प्रॉब्लम यहां तक सीमित नहीं है, और भी थोड़े से बड़े हैं। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, हमारे पास बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 600 के करीब। नाउ ऑप्शन क्या था उनके पास? अगर आप एक प्रिंसली स्टेट हो तो आपके पास ऑप्शन ये था, you can stay with India, you can go and merge with Pakistan, or else remain independent। ये मजेदार ऑप्शन दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब I am writing an constitution wherein I have to make sure that I give you that vision that if we stay united then we will be powerful। तो उस वक्त यूनिटी लाना इन सारे स्टेट्स में, इन सारे प्रिंसली स्टेट में बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, और तभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहा था। तो यू कैन इमेजिन कि सिचुएशन कितनी टफ से टफ होती जा रही है। बट येस, वी नेवर गेव अप ऑन दीज थिंग्स एंड वी स्टिल टुडे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट इन दैट। अब आते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। This gentleman is Motilal Nehru. He actually drafted the first constitution of your country in 1928। और बड़ी बात क्या है पता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से कुछ बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जो इन्होंने ड्राफ्ट की थी। और वो कौन सी हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी जानते हैं कि एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट, मेन, वुमेन एंड एवरीवन अबव सर्टेन एज। मैं 18 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ये 18 है, बाकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग एज है। देन यू हैव राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अंडरस्टैंड, ये सारे की राइट्स इन्होंने पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी 1928 में। और कराची के एक सेशन में दे डिस्कस अबाउट दिस राइट्स की व्हेन वी विल बिकम इंडिपेंडेंट, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विल हैव। और वो सारी चीजें जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, सारी की सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की रखी थी। ये आसान होता ना कि अगर आप पहले से एक रिवीजन सा कर लो, फिर वो चैप्टर आपके पास आए तो आपको बड़ी जल्दी जल्दी क्लिक होता है। ये कुछ वैसा ही चल रहा है हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट फॉर डिबेट एंड deliberations about the constituent assembly, all the policies, plan, drafting, everything was done. They all have one thing in common, that pre-decided चीज़ें जो हैं वो neglect नहीं होनी चाहिए, and that's what they did. हमारी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, इस गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से हमने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन लिए हैं। नाउ व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन? ये बेटा सेटअप कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैसा होगा, लोकसभा, राज्यसभा, पुलिस, एंड वो हायरार्की, वो पावर देना, एवरीथिंग इज बीन टेकन अप फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखिए, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताऊँ कि टीचर होना अच्छा क्यों होता है। अगर आप किसी इंजीनियर के साथ काम कर रहे हो, आपको वो बताए कि इंजीनियर होना क्यों अच्छा होता है। अब उसका और इसका लेना देना क्या है? देखिए, अगर मैं स्कूल में हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, मान लीजिए अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो मैं क्या चाहूँगा? यार मैं यही चाहूँगा कि मेरा खुद का एक स्कूल खुल जाए। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हो तो आप चाहो कि आप उसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ करो। Now when we were under the rule of Britishers, already the things were set. पहले से ही a wheel was already invented. नया व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस was already there by the Britishers. तो हमने बस वही इंस्टीट्यूशंस जो थे वो पिकअप कर लिया और हमारा काम आसान हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और पता करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। वैसे बहुत कुछ चीज़ें आप इसमें जानते हो, मैं आपको बस रिकैप दूंगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें। सी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, ये पहला मीटिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये किस चीज़ के लिए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए। तो पहली मीट हुई है December 6, 1946 में। यहाँ पर जब इलेक्शन हुए तो टोटल मेंबर्स कितने मिले हमें? 389 मेंबर्स। पर हमने तो पढ़ा था कि हमारे पास तो 299 मेंबर्स थे, तो बाकी के सब कहाँ चले गए? पार्टीशन, रिमेंबर पाकिस्तान, तो बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइड की गई थी, और हमने बाकी के मेंबर्स वहाँ चले गए और उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बेटा, उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और काफ़ी सारे अन्य लोग, जैसे कि 299 मेंबर्स हैं। 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 years 11 months 17 days के बाद यू गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट, हैवीएस्ट, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और यू आर प्राउड ऑफ इट। एक चीज और याद रखिए, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को हमने इसे एडॉप्ट किया है, और इसीलिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। एक और चीज बोलनी थी मुझे, या फिर पूछनी थी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 70 साल पुराना है, तो फिर आज क्यों फॉलो करते हो आप उसे? पुराना हो गया है, इतनी पुरानी तो आपके घर में सिवाय घर के और कुछ नहीं होगा, है कि नहीं जी? सी आंसर इज वेरी सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, इट्स अ बुक ऑफ लॉ एंड देयर इज ऑलवेज एन वैल्यू अटैच्ड विद इट। अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं करूंगा तो उसकी वैल्यू सच में कोई नहीं करेगा। हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, दे ऑल्सो हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देन नोबडी वैल्यूज इट। इट्स अ मियर पीस ऑफ पेपर जो इंडिया में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि देर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, देयर आर, but never ever a major group, party or an organization had questions the legitimacy of your constitution. और एक चीज याद रखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना बेटा, 299 मेंबर, आई थिंक दे आर द बेस्ट मेंबर्स यू कैन एवर गेट। बट उस वक्त तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, तो फिर बेस्ट कैसे कह सकते हैं? पर बेटा आपको नहीं लगता कि एक ही पार्टी में अलग मेंटालिटी, आइडियोलॉजी के लोग होते हैं? विद इन योर क्लास ऑल्सो यू हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। यू माइट लाइक रॉक, समवन एल्स लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, आई लाइक क्रिकेट, समवन एल्स लाइक सॉकर। अलग अलग लोग विद इन अ सेम क्लास। सेम वे कांग्रेस लीडर्स हैड डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉर द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो 299 मेंबर हैं, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी के नहीं थे, एंड दे डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग क्लॉज बाय क्लॉज। और इतने ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशंस के बाद कुछ लगभग 1000 अमेंडमेंट्स हुए, बदलाव हुए, तब जाके आपको दुनिया का सबसे हैवी और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट रिकैप इट. I'll be back with the next part. Thank you so much. Hello students. So we are back with the constitutional design, and our next topic is guiding values of Indian Constitution. See, if you want to know what are the guiding values behind our constitution, there is a small back story, and story deals with Gandhiji and Ambedkar. So before we go there, we talk about, let's see the philosophy of the constitution through its own eyes. अब ये उनकी आंखें कौन सी हैं? सो वी से द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द प्रीएम्बल और द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा ना, इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि लेसन नंबर, नाम, पेज नंबर, और यू कैन सिंपली गेस कि उस लेसन में क्या होगा। सेम वे preamble is the very first page, guiding philosophy of your own constitution, and then we get to know what exactly the constitution is all about. So we move ahead and talk about the dream and the promises of two gentlemen, Mohandas Karamchand Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar.
See, Gandhiji in 1930, Young India magazine is there. Here he wrote about what kind of a country he wished to see when we become independent. Similarly, Ambedkar as the chairman of the drafting committee, they both talked about what India would look like post-independence. And those all values need to be incorporated in constitution. See, both of them talked about equality. But Ambedkar ji was very clear that there would be political equality in the system, but not the social one. And he was right. And Gandhiji believed that yes, there will be political as well as social equality. And this is the reason why there was tussle between the two great leaders. But it is always good to have discussions and debate over such kind of topics, because that gives you the good outcome, which is your constitution. So when I talk about our constitution, we have this philosophy of our constitution through preamble. Preamble is nothing, it looks like a poem, a very first page index, and it begins with the same words or the same statement, and it ends with the same thing: we the people of India, and then those ideology. So remember, what all do we have in our preamble? We have we the people of India, then we have sovereign, secular, republic, democratic and socialist. Little more than this, we have justice, liberty, fraternity and equality. All these values are embedded in the preamble of our country, and this is what gives you the best constitution. See, remember all these meanings, because any 5 of them would be required to justify an answer. Now we talk about the institutional design. See, constitution is not merely a statement of values and philosophy. It is about embodying these values into institutional arrangement. सिर्फ बोलने के लिए या नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है. It is a very long and detailed document, makes it the world's heaviest and the bulkiest constitution. अगर इतना हैवी, इतना बल्कि और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस नीड टू बी अपडेटेड रेगुलरली. अब इसमें अपडेट ये नहीं होता बेटे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसमें अपडेट होता है अमेंडमेंट्स. जैसे जैसे सिस्टम बदलेगा, सोसाइटी में चेंज आएंगे, यू नीड टू ब्रिंग दोज चेंजेस इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर हैज टू बी एन स्पेस टू ब्रिंग दोज चेंजेस, और उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट्स. एनी कॉन्स्टिट्यूशन, wherever you are or in India, there are certain procedures which are laid down, which talks about how your government will be formed. And if they talk about the formation of your government, they will also limit your powers. And if you violate any of these powers, then there is a judiciary to take care of it. So this is what our institutional design is, and this is what our chapter, constitutional design. I'll see you in the next chapter. By the time, keep revising and keep smiling.